تو وہ بھی ابھی یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے کافی جمگھٹ ہے. اور جمگھٹ کہاں پہ ہے؟ یہ ہے رائٹرز کلب کے باہر میں. اور رائٹرز کلب کا جو جمگھٹ ہے نا, اگر ہم دیکھیں گے جہاں پر یہ بزرگ لکھاری دیکھنے کو مل رہے ہیں, وہیں پر ہم کو ملیں گے دیکھنے کو آگے ہمارے یووا لکھاری. ایک انہوں نے نظم بولی تھی کہ قبر پہ گائی جائے گی, فاتحہ پڑھا جائے گا. میں چاہتا ہوں کہ وہ شازی صاحب اپنی زبان سے بولیں. چپ چاپ جینے کی عادت سی ہو گئی ہے, ہر زخم کو سینے کی عبادت سی ہو گئی ہے. تنہائیوں کا شوق ہے اور آنسوؤں سے پیار, اس زندگی سے مانو بغاوت سی ہو گئی ہے. کہ تیری آنکھوں میں ہے چہرہ کسی غیر کا صنم, ہم کو بھی آئینوں سے اب نفرت سی ہو گئی ہے. کہ بے چینی سی چھائی اور دل میں تڑپ بھی ہے, لگتا ہے ہم کو تم سے محبت سی ہو گئی ہے. مجرم نہیں ہے شازی پھر بھی نہ جانے کیوں, دنیا تمام ساری عدالت سی ہو گئی ہے. دنیا تمام ساری عدالت سی ہو گئی ہے. تو یہ دیکھیے چار چاند لگانے کے لیے فوزیہ مغل جی لکھاریوں میں یہ ایسی لکھاری ہیں جو یووا اور بزرگوں میں دونوں کے درمیان ہے. تو کس طرح سے دیکھ رہی ہیں کہ رائٹرز کلب میں آج اتنی دیر کے بعد لوگ جڑے ہیں, کیا ایونٹ ہے پلیز بتائیں. بہت اچھا, یہ مراز ادبی کا پروگرام ہے کشمیری جموں کو کشمیر میں جو ہے مطلب جموں کے ساتھ کشمیر کا جو کلچر اور دیکھنا ہے کہ کشمیری زبان پہ کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے اور کیا کمیاں آ رہی ہیں کس طریقے سے جموں ڈویژن میں. ہم تو ویسے بھدروائی ہیں, ہم تو کمیاں نکالنے میں ایکسپرٹ ہیں. کس طرح سے دیکھ رہے جو یہاں پہ بہت زیادہ, کیونکہ یہ ملاپ ہے, ادبی ملاپ ہے, لٹریچر کا ملاپ ہے, کشمیر کلچر کا ملاپ ہے. جو یہاں پہ کشمیری پنڈت ہیں جو یہاں مائگریٹ ہوئے ہیں, ان کا ادب جو ہے لٹریچر ہے کہاں پہنچا ہے, فیوچر میں کون سے چیلنجز ہیں. تو آج آپ کیا کرنے والی ہیں؟ ہم بھی تو سننے والے ہیں, سننے والے ہیں اور کشمیری زبان کو پروموٹ کرنے کے لیے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے بچوں میں. ویسے تو ہم بہت کوشش کر رہے ہیں, کوشش زبان پھیلاؤنے خاطر. مدر ٹنگ کشمیری ہے اور خش آتی ہے, بالکل کشتواڑی میں خش آتی ہے. تھوڑا بھدروائی الگ ہو جاتا ہے, اس میں گرامر نہیں آتا. ہاں لیکن کشتواڑی میں بھی خش ہے. تو ارسل ڈوڈا میں خش دیکھنے کو ملتی ہے. اور فوزیہ میم کے ساتھ میں بحث نہیں کر سکتا کیونکہ زبان کی اگر میں بات کروں, آج کے ٹائم پہ بڑے سارے لکھاری اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن یہ اصلی لکھاریوں میں سے ہیں. جو لٹریچر پریزرو ہوتا ہے, کلچر پریزرو ہوتا ہے, پروموٹ ہوتا ہے, ہم ان لوگوں میں سے ماشاءاللہ. میں تو چاہتا ہوں کہ آپ جس طرح سے ابھی بنی رہی ہیں اسی طرح ہمارے ساتھ عمر انشاءاللہ. تو سموار چائے اور گردے بھی آ گئے ہیں. جی 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 جی. تو یہ دیکھو خوبصورت سموار چائے, اس میں چینی ڈل رہی ہے آلریڈی. قہوہ میں یہ قہوہ ہے کشمیری قہوہ. چندن چائے کن قہوہ جام جام السلام علیکم. عقل تو فکر اور کو تو سوزک کنے مالی چت سود ہوئے سنجیوانہ ساتھ ان سے درخواست ہے کہ وہ آئیں, اور وہ آ رہے ہیں, وہ تشریف لا رہے ہیں, تو ان کے لیے ہم یہاں پہ کرسی خالی رکھ رہے ہیں. صدر ادبی مرکز کمراز میزبان اعلیٰ تو میری کاروان
जनाब मोहम्मद अमीन भट्ट से दरखास्त शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। व्हाट्सएप बार बार गैर कुन वुचान टाइम क्या लेट बहरहाल चीज़ सपदान बकर दरखास्त मोहतरमा फौजिया मुगल साहिबान जितम डायसिस पे कर ख्यालात पेश। शुक्रिया अदबी मरकज़ का अमराज और सभी जो हाज़रीन हैं यहाँ पे, बहुत बड़े अदीब, बहुत बड़े नक़ाद, बहुत बड़े शायर लोग हैं हमारे बीच में। मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रही हूँ कि यहाँ आपके पास यहाँ बैठी हूँ तो बहुत सारे जो हमारे बुज़ुर्ग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो मैं यही कहूँगी कि ये बहुत बड़ा ये जो आप बहुत बड़ी सरमाया ये ज़बान ये ज़बान जो है ये बहुत बड़ा सरमाया होती है। और इस ज़बान को संभालने के लिए लोग तो अपने आप को संभाल लेते हैं अपने खाने पीने का, मैंने ज़बानों को संभालना शुरू किया और इसकी जो बागडोर जो है वो काज़मी साहब ने मुझे दी अंजुमन की शक्ल में। अंजुमन फरोग उर्दू की सदर बना के मुझे आप लोगों के साथ बैठने का मौका दिया। उससे पहले मैं ये बात करना चाहती हूँ कि 10-12 साल पहले जब मैं यहाँ प्रोग्रामों में शिरकत करती थी तो कश्मीरी जो हमारे यहाँ प्रोग्राम कश्मीरी के होते थे, नागराज अदबी संगम के और समृद्धि वगैरह इनके प्रोग्राम्स होते थे। एक समन बल होता था जिसमें भी मुझे दावत दी जाती थी। कश्मीर के लोग कश्मीरी यहाँ के एक प्रोग्राम करते थे जिसका नाम मैंने समन बल रखा था और यहाँ पे उसमें मुझे लगता था कि मैं अपने घर में पहुँच गई हूँ। इसी तरह से सभी लोग जो यहाँ पे माइग्रेंट्स हैं जिनका घर वहाँ है लेकिन यहाँ पे रहते हैं, एक ज़ुबान ही है जो हमें जोड़ती है। ये कश्मीरी ज़ुबान जो है ये हमें इकट्ठे रखती है। हम प्रोग्राम करते हैं इकट्ठे मिलके, डोगरी, पहाड़ी, गोजरी, उर्दू के साथ साथ सारी ज़ुबानों को, डोगरी हमारे यहाँ हमने फ्री उनको मतलब एक स्टेज दिया है कि आप आके अपने जिस भी ज़ुबान में आप बोलें, क्योंकि हमें लिखने वालों की ज़रूरत है। आगे की नस्लों के लिए हमने ज़ुबानें पहुंचानी है। तो 10-12 साल पहले की बात है कि मुझे याद नहीं अब कौन से वो ये थे जिन्होंने मुझे यहीं इसी तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ कश्मीरी में बात करती हैं, एक काम करें आप कि जितने भी आपके साथ कश्मीरी बोलने वाले बच्चे हैं स्कूल में, आप उनके साथ कश्मीरी में बात किया करें। तो मैंने तब से कश्मीरी में ही बात करना शुरू कर दिया, अपने बच्चों के साथ भी और उनके साथ, ताकि ज़बान ज़िंदा रहे। और मैंने कोशिश की और फिर मुझे आदत ही पड़ गई कश्मीरी में बात करने। चाहे मैं किससे बात कर लूँ तो मैं कश्मीरी में ही बात करती थी। क्यों? क्योंकि वो कहते कि बच्चों में कम से कम अगर वो यहाँ पे कश्मीरी में बोलते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं। हमारे प्रोग्राम जगती में भी होते थे और जगह पे होते थे, तो हमने बच्चों के साथ कश्मीरी में ही बात करनी। मैंने तो स्टार्ट ही वहीं से किया। तो उर्दू मेरी ज़ुबान नहीं थी, लेकिन जब मैं स्कूल में उर्दू में कोई लेक्चर देती थी तो उर्दू मेरे इस हिस्से में आ गई। तो आगे भी इन्होंने मुझे उर्दू की बागडोर दी। मेरा सब्जेक्ट सोशियोलॉजी था, एजुकेशन था, लेकिन उर्दू मैंने ग्रेजुएशन की थी उर्दू में, तो उर्दू ही मेरा वो बन गया। जब उर्दू की जिम्मेदारी आई तो उसको निभाने की कोशिश की, कश्मीरी की जिम्मेदारी आई तो कश्मीरी को निभाने की कोशिश की। ज़ाहिर बहन अली साहब ने कायदे लाए, पिछले साल भी 2-3 साल पहले भी उन्होंने कायदे, मैंने कहा कश्मीरी कायदा मुझे नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने कश्मीरी कायदा लिखा हुआ था तो यहीं पे मौजूद है। हमने बच्चों में वो बांट दिए कश्मीरी कायदे कि कश्मीरी में एटलीस्ट वो लिखना शुरू कर दें और बोलना, क्योंकि हमें भी ये प्रॉब्लम थी। मेरी दादी कश्मीरी में कश्मीरी की शायरा थी, लेकिन हम कश्मीरी में लिख नहीं पाते थे। तो वो कहती थी क्या फ़ायदा आपकी इतनी डिग्रियों का, मेरी पोतियाँ इतना ये पढ़ती हैं लेकिन कश्मीरी में मेरा कलाम नहीं लिख पाती हैं। तो हम ऐसे फिर हमें एहसास हुआ कि सचमुच कहीं ना कहीं कमी रही, स्कूलों में नहीं था। तो ये बेसिकली स्कूलों से ही शुरू होना चाहिए लैंग्वेजेस का, तभी हम इनको ज़िंदा रख पाएंगे। यूनिवर्सिटी लेवल पे होते हैं लेकिन उसमें इतना काम फिर होता नहीं है।
क्योंकि जब हमारा बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, लिख नहीं पाएगा, जब हम नहीं पढ़ पाए लिख पाए तो वो कैसे पढ़ पाएंगे आज। तो ये चीज़ें जो हैं उनके मतलब जो हम अभी मैं खुद अपना लिखती हूँ कश्मीरी में, लेकिन फिर पढ़ नहीं पाती हूँ। हमारे यहाँ महाराज कृष्ण जी आते थे, कहते जैसे पानस कॉन्फिडेंस से झट में हैगन भूल थी मतलब जो मैंने खुद लिखा हुआ होता है वो मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। बहुत लिखा है कश्मीरी में लेकिन पढ़ नहीं पाती हूँ। मैं कहती हूँ यहाँ रुक के मैं क्या पढ़ूँ, अच्छा नहीं लगता है। इतने बड़े बड़े अदीब और शायर हैं, उनके सामने मैं अपना कश्मीरी कलाम पढ़ूँ, अब नाज साहब के सामने। मगर यम सात रीसेंट गो तर्जम गो कुरान मजीदस कशीर मज तथ इंट्रोडक्शन मज इम्पोर्टेंट जुमले लिखित कि अकिस अरबी मुहावरस मुकाबल हसा 4-4-5-5 मुहावर कशीर जबान मौजूद। इस बात को हमें मतलब असमा पज पानी तस्लीम कर लल क्या वोनमुत एहसास तम क्या झूठ ये दम कत सोन अदब खास कर पोइट्री अम पे नसर मॉडर्न एज हूँ आज कर बे कत कि यह सरसी योतन अदबस मज पर्शियन पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, तुम पढ़ो जो मशरकी ज़बान है, आप उनको पढ़ लो तो आपको सिर्फ कश्मीर में मिलेगा। ये हिंदराज दरबार जो बेकुन अदबस मज पढ़ो ये ज तहजीबन हुंद मिल शिव फिलासफी एंड इस्लामिक सूफीज़म यह सिर्फ सान शायरी मज सारी शायरी पढ़ो तो यह कुछ शायद तक अख तसव्वुर ये लॉकटिस बॉयस जनाब शाकिर शफी सबस गुजारिश जे दोयम नशस्त नजामत करने बाबत आन तम डायस पर तशरीफ तो यह नशस्त ये तकरीबी हंद ये कॉन्फ्रेंस मगज यह नशस्त वसब तम लिहाज अत मज 3 पेपर पाने तो बह कर मजीद कत करने बाबत दरखास्त जनाब शाकिर शफी सबस। शाकिर शफी हेलो सभी हाजरीन व हाजरात की खिदमत में मेरा खलूस भरा और प्यार भरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमहीद माँ बकर सठी अदबत एहतराम सान गुजारिश बड़े संगीत किस बाले बायबी दानिश्वर उर्दू तो कर्श ज़बान में यकसां महारत थालन वालिस वस्ताद प्रोफेसर मोहम्मद जमान आजुर्दा सबस इस्तिदा ज़ितमनन तशरीफ करन यह नशस्त सदारत। जो अदबी मरकज़ कमराज की जो ये कॉन्फ्रेंस हो रही है कश्मीरी ज़ुबान के हवाले से और जम्मू खित्ते में इसके जो हालात हैं, क्या पोजीशन है उसके बारे में, मुझे लगता है कि ये ज़ुबानों के लिहाज से जो हमारे जम्मू कश्मीर की ज़ुबानें हैं उसके हवाले से अच्छा एक प्रयास है, क्योंकि कश्मीरी तो 5000 साल से भी पुरानी ज़ुबान है और इसमें मतलब जिसको बोलते हैं प्री वैदिक टाइम से लेके और आज के जितने भी असरात हैं पॉलिटिकल कल्चरल वो ज़ुबान में अंदर होते हैं और उसी से उसकी एक जो रिचनेस बनती है। तो कश्मीरी हमारी बर्र सगीर की नहीं दुनिया की एक बहुत पुरानी ज़ुबानों में से है और मेरा तो ये मानना है कि इसको क्लासिकल लैंग्वेज का भी दर्जा दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें वैदिक संस्कृत के अलावा पैशाची और दूसरी जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं हमारी इतिहास को लेके, संस्कृति को लेके, और जो कश्मीरी भाषा का, कश्मीरी लोगों का जो योगदान है भारतीय सभ्यता में, उसके ऊपर दोबारा से मतलब एक नई पीढ़ी को आगाह करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। और कश्मीर की जो एक आध्यात्मिक परंपरा है, लाल देद हो गए, शेख आलमीन हो गए, तो इन सब को जो एक पुराने ज़माने से हमारी आध्यात्मिक परंपरा है जिसमें वैदिक, पोस्ट वैदिक, बौद्ध परंपरा और शैव परंपरा और उसके साथ बाद में जो इस्लाम के जो सूफीज़म और दूसरी चीज़ें जो मिलके वहाँ का लोक जीवन में जो मूल्य हैं, भावनाएं हैं, उनके बारे में नई पीढ़ी को बताने की बहुत ज़रूरत है। और